Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon. I cannot see you. Yes, good afternoon, Devans. Good afternoon, sir. Okay. So Devans, this I do every year, right? Yes, sir. So we will focus totally on law optional UPSC. ठीक है? Sirf law optional UPSC, nothing else. Little bit, prelims also, but mostly law optional UPSC. Okay. Right, sir. Okay, Devans. So first of all, congratulations. And Thank I you, know sir. how long this journey has been, right? I have been almost uh, been there, together. Yes, sir. Now, first of all, as this will go on YouTube, right? First, tell me about yourself, Devas. Sure, sir. Sir, I am Devansh Saraswat. I have secured All India Rank 374 in this year's UPSC Civil Services examination. This was my fourth attempt, and I have done law from Symbiosis Law School, Pune. Thereafter, I prepared for this exam, and this time I was lucky enough to find my name in the list. Uh, Devans, think it as that we have not interacted earlier, right? This is the first time we are interacting, right? So try to be very comprehensive in your answer, okay? All right, sir. Because people will watch it for the first time, right? They should have an idea, right? How did you prepare in very detail with regard to every subject? Okay. Right, Okay, sir. Devans. So tell me, how did you prepare for constitutional law? Sir, before specifically talking about constitutional law, for all law subjects, my fundamental source was college notes, which were sourced from the standard textbooks that were there. So first source was college notes, then it was further substantiated by PYQs and value addition material based on current affairs. So coming on to constitutional law, the primary notes were made from V.N. Shukla and M.P. Jain, but that was done during the college time. During the preparation, it was only enriched by PYQs and the recent developments that has happened. So you did not refer to Dukis. Other candidates are keep on saying that refer to Dukis, refer to Dukis. You did not do so, right? You studied No, from sir. original source. Okay, No, sir. that is a good thing also. Okay, what about the international law, right? Because people mostly find international law quite tough because mostly they ignore international law. So how did you study international? Yes, sir. So for international law, there is this small book by Carnegie and Carnegie brothers. It is a very small, concise book, but the notes or the material that is there, you can directly copy it in your notes. It's that concise. So, and all the topics that are there in international law syllabus are covered in that. And the case laws and all the material is very comprehensive. You don't even have to, cut it short. You just need to copy it or you just need to mug it up. It is that concise. What is the name of the book? Kanade, Carnegie. Acha Khan. Okay. VN Carnegie. Yeah, correct. Okay. What about the CLD portion? Because people often who are new to law optional, they often see the topic, right? And they feel like the entire topic is a subject in itself, right? So how did Yes, you sir. study the CLD part? Sir, initially I referred to my individual subject notes from college, but that was very detailed. So the PDF that you sent last year, the notes that I had, उनको थोड़ा सा मैंने थोड़ा और शॉर्ट करने के लिए वो वाला मटेरियल लिया और बाकी PYQs का ही उसमें मोर और लेस था. अदरवाइज तो वो बहुत वास्ट हो जाता है. तो मतलब जो मैंने पीवाई वो भी हाँ सर. पीवाईक्यू पे बेस्ड ही बने हुए हैं, राइट? तो मतलब यस सर. पे आपने कौन सा किया उसको, ठीक। यस. व्हाट अबाउट द लॉ ऑफ क्राइम? तो लॉ ऑफ क्राइम के लिए केडी गौर जो बेसिक नोट्स थे स्टार्टिंग में वो तो केडी गौर से ही थे. आफ्टर दैट अभी जैसे बीएनएस आ गया तो उसके लिए तो बेयर एक्ट यूज किया कि जैसे आईपीसी के सेक्शन है तो कॉरस्पॉन्डिंग बीएनएस सेक्शन भी लिख लिए. और बाकी केस लॉज वगैरह के लिए जितने भी पीवाईक्यूज है उसमें जितने पूछे हैं इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उनके सारे केस लॉ की एक लिस्ट कंपाइल कर ली और सेक्शंस के साथ. बस. तो मतलब इस बार वही एडवाइस जो मैंने दिया था वही मुझे लगता है आपने फॉलो किया कि आईपीसी लिखो स्लैश बीएनएस कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन। ये सर. ठीक है, ओके। क्योंकि अभी मुझे लगता है 1-2 साल वही एडवाइस चलेगा। ठीक है, क्योंकि जो एग्जामिनर हाँ है वो भी दे आर नॉट स्टिल वेरी मच कंफर्टेबल विथ करस्पॉन्डिंग डायरेक्टली कोटिंग बीएनएस सेक्शन, राइट? उनको भी अभी आईपीसी ही सर अभी तो इस बार तो उन्होंने क्वेश्चन भी आईपीसी साइड करके ही पूछा. स्पेसिफिकली पूछा था। हाँ. मुझे लगता है इस बार भी वही करेंगे, क्योंकि एक चीज मैंने देखी थी कि जैसे ये जो ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बाद में अमेंड भी हुआ, लेकिन फिर भी जो है वो पुराने वाले ही पूछते हैं, राइट? तो ये जो सर. सिलेबस में है जनरली वही पूछते हैं। ओके, नाउ आई नो एज पर्सनली आई नो यू फॉर ऑलमोस्ट 2-3 years। ये ये सर. प्रीलिम्स का कैसे कर रहे हैं आप ये? क्योंकि आई हैव सीन दैट यू हैव 1 year you could not qualify but 2-3 years you qualified prelims, right? So anything, any feedback that you like to give for prelims, how to go about it?
सर अकॉर्डिंग टू मी प्रीलिम्स इज वेरी मच ए कॉन्फिडेंस गेम। अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हो कि इवन इफ आई वेदर आई नो और डोंट नो ए पर्टिकुलर थिंग बट स्टिल आई एबल टू सॉल्व इट थ्रू बाय लॉजिकल गेसिंग और रीजनिंग, तो वो डेरिवेटिव नॉलेज काफी काम आता है उसमें। तो उसके लिए क्या है कि पीवाईक्यूज 15-20 साल के अच्छे से मतलब एक बार नॉट जस्ट एज ए सोर्स की वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि रिपीट हो सकता है, बट एज ए पैटर्न की एग्जामिनर किस टाइप से गलत स्टेटमेंट फ्रेम कर रहा है और राइट स्टेटमेंट की यूजुअली क्या टोन रहती है। अगर वो आइडेंटिफिकेशन हो जाए देन उसके बाद में फिर इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो अगर वो वाला कॉन्फिडेंस आ जाए, बट वो तभी है कि एक बार आपका फंडामेंटल्स क्लियर हो। एक बार फंडामेंटल्स क्लियर हो गए तो उसके ऊपर सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और वो एक बार पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाता है तो प्रीलिम्स फिर आई डोंट थिंक इज एन इशू। मतलब ये कह रहे हैं कि एक बार बेसिक कवर करो, फिर पीवाईक्यू लो और बैठो, और उसके मतलब पिछले 15 साल के पीवाईक्यू आपने कहा, हाँ सर। 15 साल के क्योंकि पीवाईक्यू। उसमें थोड़ा सा एक तो दो चीजें हैं इसमें। एक तो वो इट बिकम्स ए सोर्स इन इटसेल्फ कि जो इंपॉर्टेंट थीम्स है वो रिपीट होते ही होते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रीजनिंग वाला पार्ट है। तो अगर वो आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर आपको खुद ही पता चल जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा और कौन सा गलत होगा। इंस्टिंक्ट ही ऐसा बन जाता है। अच्छा, तो मतलब ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली ये बिल्ड हो जाता है, एटलीस्ट ये तो पता चल ही जाता है कि ये आंसर करेक्ट नहीं है, सो दैट हाँ यस सर। वो एलिमिनेशन गेम भी होता है। यस सर। Okay. Now, what about the overlap of law optional with the GS part? कुछ ऐसा पोर्शन है जहां ओवरलैप करके आपने नोट्स बनाया है, या ऐसा कुछ जहां पे आपने ओवरलैप करके पढ़ाई करी है? सर ओवरलैप तो नहीं कहूंगा, क्योंकि लॉ ऑप्शनल में ज्यादा अपन केस लॉज और प्रोविजंस पे, बेयर प्रोविजंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जीएस 2 में थोड़ा सा आपको फिलोसफिकल पार्ट भी ज्यादा एड्रेस करना होता है। तो उस हिसाब से ओवरलैप नहीं, हाँ बट जो नॉलेज है वो तो कभी भी यूज अप्लाई कर ही सकते हो। जैसे कुछ जैसे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का कुछ क्वेश्चन है तो उसमें फिलोसफिकल पार्ट अपन जीएस से कुछ कॉपी करें, कुछ कोट लेके आए। और सिमिलरली प्रोविजन है या केस लॉ है, जैसे कृष्ण कुमार सिंह वाला जजमेंट था, वो 7 जज बेंच वाला था, वो अपन जीएस 2 में डायरेक्टली साइड कर सकते हैं। तो ऐसे इंटरऑपरेबिलिटी तो चलती है उसमें। तो आपने जीएस पेपर 2 में लॉ टाइप आंसर लिखे थे, या मतलब उसमें जीएस जनरिक ज्यादा लिखा था आपने इस बार? सर मिक्स ऑफ हेल्थी मिक्स रखा था मैंने दोनों का। मतलब स्टार्ट तो बेसिक प्रोविजन से किया था मोर और लेस, जहाँ पे भी प्रोविजन रिलेटेड क्वेश्चन था। बट थोड़ा सा उसमें मतलब जनरलिस्टिक आर्गुमेंट्स ज्यादा थे रादर देन कीपिंग इट टू लॉ इटसेल्फ जीएस 2 में। क्योंकि दो फीडबैक है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर मतलब 3 साल पहले वो जो 31 रैंक था, अविनाश राइट, तो उसने मुझे फीडबैक दिया कि सर मैंने पूरा का पूरा लॉ ऑप्शनल वाले आंसर लिखे, खूब सारे लॉ लिखे हैं। ठीक है, तो काफी अच्छे नंबर आते हैं, गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट इन दैट जीएस पेपर पे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपने दोनों का मिक्स एंड मैच किया था, राइट, ताकि एक हेल्दी यस। कॉम्बिनेशन। ओके। और सर इस बार थोड़े क्वेश्चन डायरेक्टली लॉ पर भी नहीं थे, थोड़ा सा जीएस टाइप के जीएस 2 में भी थे। मतलब जैसे अनफेयर मीन्स वाला जो लॉ है उस पे क्वेश्चन है, तो उसमें ऐसे केस लॉज वगैरह तो कुछ काम नहीं आएंगे, तो वहां पे जनरलिस्टिक पॉइंट्स तो लगेंगे ही लगेंगे। हाँ, सही कह रहे हैं, 2-3 साल पहले डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था ना, केस केस लॉ हाँ बताइए। Okay, यस। ठीक। व्हाट अबाउट द एक जो जेनरिक सवाल है, राइट, क्योंकि आप काफी अच्छी जर्नी आपकी रही है और आपने काफी, मैंने देखा वेल प्लान्ड आप पढ़ाई करते हैं, राइट, कि भाई ये टॉपिक खत्म करनी है तो करनी है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। तो जो यस सर। मान लीजिए बच्चा 4th और 5th ईयर में है, राइट, तो उसको क्या एडवाइस करेंगे जूनियर्स को अपने, कि भाई कैसे शुरुआत करो एकदम बढ़िया से, कि भाई कैसे शुरुआत करो, अगर तुमको यूपीएससी करना है तो ये ले लो और शुरुआत कर लो। तो कैसे वो शुरुआत कर सकता है 4th 5th 4th ईयर? सर 4th 5th ईयर में मेरे हिसाब से वो फाउंडेशनल ईयर है यूपीएससी प्रिपरेशन के भी, नॉट जस्ट कॉलेज। तो वहां पे एक अपन ये इंश्योर कर सकते हैं कि जब अपने पास टाइम हो तो उस टाइम अपन एक बार सिलेबस उठा लें यूपीएससी का और टॉपिक्स देख लें, और उसके हिसाब से जितने भी अपने पास स्टैंडर्ड मटेरियल है, ताकि बाद में फिर, क्योंकि सर अगर जैसे साइकिल में आ जाते हैं उसके बाद में अगर अपन नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो वो हमेशा अपन शॉर्ट नोट्स ढूंढेंगे कहीं से, जैसे वो जो आपने बताया था वो डीयू वाला जो भी है। बट अगर कॉलेज से ही वो स्टार्ट कर लेंगे तो स्टैंडर्ड बुक से अपना नोट्स आराम से बन सकते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम होता है। एक बार वो बेसिक नोट्स बन जाना तो फिर उसके बाद सिर्फ वैल्यू एडिशन का काम बचता है। तो अगर उतना ही कर लें, और एक इंपॉर्टेंट चीज कपल्ड विद न्यूज़पेपर रीडिंग डेली, वो अगर हैबिट आ जाए तो उसके बाद फिर फाउंडेशन आपकी बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो ये तो क्योंकि आपकी कॉलेज के भी 3-3 बच्चे पास किए हैं, राइट, आपके साथ है। अच्छा, यस एक चीज मैं सर। देख रहा हूँ कि हर एक साल पर्टिकुलर कॉलेज के काफी बच्चे पास करते हैं, right? जैसे इस साल आपके कॉलेज के इनफैक्ट 4 हुए हैं, मतलब आपको अगर मिला दे तो। पिछले साल एक पर्टिकुलर दूसरे कॉलेज के मैंने देखे थे 4-5 एक साथ हो गए थे, right? तो क्या आप लोगों ने कुछ ग्रुप स्टडी करी या ऐसा कुछ, एक दूसरे को हेल्प किया, ऐसा कुछ? नहीं सर, इसमें ग्रुप स्टडी तो नहीं, बट बाद में बात जरूर हुई थी, बट ग्रुप स्टडी का सीन तो नहीं था, बाद में पता चला था। बाद में? ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो काफी जल्दी हम लोगों ने निपटा दिया इसको, आपने ना जल्दी जल्दी आंसर दे करके ठीक है। चलिए, तो कोई लास्ट थॉट, जैसे खासकर उन बच्चों को जिनका कि प्रीलिम्स एक बार हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है आपका लास्ट टू लास्ट टाइम इंटरव्यू कितना मतलब गड़बड़ हो गया था।
तो उनको ये ड्यूरेशन बड़ी मतलब कचोटती है ना, राइट, कि भाई बड़ा टाइम हो गया, क्या कर रहा है, राइट। तो उसके लिए क्या कुछ कुछ टैकल करने का कुछ टेक्निक या ऐसा कुछ क्या आपने सोचा, कुछ इमोशनल ऐसा कुछ रहा जिससे कि ये जर्नी काफी अच्छी हो गई, या मतलब क्या सोच सकते हैं बच्चे की ताकि ये वो ना हो? सर इसमें डिस्टेंस वाला जो पॉइंट है कि टाइम बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है और ईयर आफ्टर ईयर करना पड़ता है। तो उसमें तो मैं तो अपने आप को यही बताता हूँ कि ये जो टाइम अपने को एक्स्ट्रा मिल रहा है वो ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो अगर अपन कंसिस्टेंटली काम करते रहे और जितना अपने इससे पहले परफॉर्म किया है, मतलब अपने स्टैंडर्ड से ही थोड़ा सा बेटर करने का ट्राई करते रहे रादर देन कंपेयरिंग विद समवन एल्स, तो वो फिर अपन को राइट ट्रैक पे रखता है। बस उस ट्रैक पे रहना ही है, डेविएट नहीं होना। सिर्फ उस पे अगर बने भी रहे ना तो भी वी कैन गेट लकी एनी डे, उसका अपन कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ, कंसिस्टेंसी है कि लगे रहना चाहिए बस। देखिए मतलब मोस्टली यूपीएससी का मैं रिपोर्ट भी देख रहा था, तो उसमें वही है कि थर्ड और फोर्थ वाले ही ज्यादा पास होते हैं, राइट। Yes. थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट होता है, क्योंकि एक बेंचमार्क सेट हो जाता है ना कि भाई नो मैटर हाउ ब्रिलियंट यू आर, 2-3 साल लगेंगे आपको जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लेवल में आने, ठीक है, क्योंकि वो भी तो हाँ पढ़ी सर, बट जाते हैं। बस इसमें वो भी अपने को पहले भी प्री कंसीव नोशन भी नहीं रखना चाहिए कि फोर्थ में ही होगा या फिफ्थ में ही होगा, फर्स्ट में भी होगा। हाँ, बस अपनी साइड से इतना प्रोसेस है उसको अगर अपन स्टिक करें तो जब भी होगा हो जाएगा। एक एक का वो परफॉर्म, ठीक, दैट्स वेरी गुड। और लॉ में करंट अफेयर वगैरह कुछ हैंडल कैसे किया आपने, कुछ इसमें बताइए। सर करंट अफेयर्स की तो जैसे आप मंथली करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन भेज रहे थे, तो उसी में से जहां जहां इंपॉर्टेंट लगा कि ये वैल्यू एडिशन की चीज है, मतलब डायरेक्टली तो उसको पूरा यूज नहीं किया। मतलब जैसे कोई केस लो है या कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड आ गया या कुछ इंपॉर्टेंट कोट आ गया उसमें, बस उतना उतना आपने जो मेन नोट्स है उनमें जाके थोड़ा सा एडिशन डाल दिया, बस इतना ही। उससे भी करंट अफेयर पूरा आंसर तो होता नहीं, इट इज जस्ट लास्ट में 2-3 लाइन या हाँ, और एग्जाम्पल। एक्चुअल आंसर राइटिंग में लास्ट में एक पैराग्राफ, स्पेशली जैसे बीएनएस के क्वेश्चन थे, तो जैसे सेडिशन का क्वेश्चन हो तो लास्ट में की हुई सेक्शन 150 आ गया बीएनएस का, वो उसको थोड़ा सा रिप्लेस कर रहा है, तो वो एक एडिशनल वैल्यू एडिशन होगी। ठीक है। चलिए, तो दैट इज अ वेरी गुड, वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज इंटरव्यू आई सपोज, राइट। और फिर से आप इस बार दे ही रहे होंगे, तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम उम्मीद है कि ओके। सो देवांश, इंटरव्यू कैसा हुआ ये बताइए, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ द इंटरव्यू एंड द क्वेश्चंस आस्क्ड? Sir, this was my second interview, and this time around it was really good. Primarily because मैं एक तो better prepared था, और दूसरा ओपन एंडेड माइंड था कि मतलब कुछ भी पूछें तो अपन कोई प्री कंसीव नोशंस लेके लिए जाएंगे। तो और फिर क्वेश्चंस भी थोड़े मोरलेस फेवरेबली रहे कि डेफ को ही रखा मोरलेस, और लॉ ऑप्शन से ज़्यादा क्वेश्चन थे। लॉ ऑप्शनल में भी जेनेरिक क्वेश्चंस, मतलब जिस पे अच्छा डिस्कशन हो सके, जैसे स्टार्ट उन्होंने किया था अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, तो कॉलेजियम सिस्टम वाला जो इशू था उस पर उन्होंने स्टार्ट किया और उस पर ही काफी लंबा चेयरमैन सर ने मोनोलॉग दिया। तो उसमें फिर अपने पास ये था कि फॉर्डर है, मतलब अपन वी कैन गो ऑन डिस्कसिंग इट एट लेंथ। तो वो हो गया। फिर उसके बाद में थोड़ा सा उन्होंने लॉ प्रैक्टिस की तरफ वो भी चले गए कि लॉयर्स को तो क्लाइंट्स गाली देते हैं, लॉयर्स की रेपुटेशन इतनी क्यों खराब है, तो थोड़ा उस साइड भी चले गए। तो वहाँ फिर मैंने कहा सर जनरल रेपुटेशन तो ऐसी है, बट देर आर रोटन एप्पल्स एवरीवेयर। बट ओवरऑल फिर उसमें उन्होंने पूछा कि क्या इंप्रूवमेंट का स्कोप है, तो मैंने कहा सर क्वालिटी ऑफ एडवोकेसी का जो है सिनेरियो वो इम्प्रूव करना चाहिए। तो लॉ पे तो इतना ही था, बाकी उसके अलावा थोड़ा आईआर पे भी था, क्योंकि उस टाइम पे न्यूज़ में था ये इंटरनेशनल लॉ वाला जो पार्ट था कि ये पनामा को एक्वायर करेगा डोनाल्ड ट्रंप। तो उस पे थोड़े क्वेश्चन थे, बाकी डेफ पे था। तो मोर और लेस अपने जो स्ट्रेंथ थी उसी पे था इंटरव्यू, इसलिए अच्छा है वो। नहीं, आपने वो पॉइंट बड़ा अच्छा बताया था कि आपने टेक्निकली बताया कि जो हैंड ओवर एग्रीमेंट था पनामा कनाल का, यूएस हाँ सर, उसमें उसमें मतलब यूजुअली जनरल आंसर तो यही होगा कि नहीं, इट वुड बी अ वायलेशन ऑफ सोवरेनिटी टू क्लोज फॉर ऑफ यूएन चार्टर। बट उसमें थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट मैंने ये पढ़ रखा था कि टू प्रोटेक्ट द न्यूट्रलिटी यूएस कैन ऑलवेज इंटरफेयर, वो ट्रीटी में लिखा हुआ है। तो फिर वो अच्छा एक वैल्यू एडिशन से लगा, और वो सुनते ही फिर उन्होंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, फिर वो मेरे हिसाब से वो उस पर बहस ही नहीं करना चाह रहे। मतलब ये दे आल्सो माइट नॉट बी अवेयर, आपने इतना टेक्निकल और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, ठीक है, दैट इज क्वाइट। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच देवांश, ठीक है, एंड होपफुली वंस यू फर्दर इंप्रूव योर राइट फिर हम लोग मिलेंगे, ओके। ओके सर, थैंक यू।